we were discussing cell membrane or biomembrane, right? We described some basic things about biomembrane in last class, right? Like biomembrane is called biomembrane because there are different membranes that lie in a eukaryotic cell which have similar basic structure. Like if you compare the Golgi complex membrane with endoplasmic reticulum membrane, you will find basic similarity in them. Or even if you compare a cell membrane with a mitochondrial membrane, there also you will find a basic set of similar things. That's why we use the term biomembrane altogether for different membranes that are present in different structures of a eukaryotic cell, right? Then we said that any membrane or any biomembrane has basic components in the form of lipids, proteins and carbohydrates, and we also said that amount of carbohydrates is always and always less as compared to amount of lipids and proteins, right? ये भी हमने पढ़ा. फिर हमने ये भी पढ़ा कि there were different models that were proposed for the structure of biomembrane or cell membrane, but the most accepted model that can explain all different properties of a biomembrane is fluid mosaic model. So in this lecture we are going to describe all the details about fluid mosaic model, and as we said this in last class too or last lecture too, again we are saying it repeatedly here that it was proposed by Singer and Nicholson. As you can see, the model was proposed by Singer and Nicholson in 1972. So it's not a very old thing, it's a recent thing और recent era में ही इसका structural detail बताया गया है. 1972 means less than 50 years. Okay. As far as this model is concerned, as you can see the facts, I am explaining these points one by one. Okay, it will be easy thing for us to understand if you have all written things here on the board. That's why it is done. What is written? According to this model, cell membranes are not rigid but are quasi-fluid. Quasi-fluid से डरो मत. Quasi-fluid का मतलब semi-fluid. मतलब ये मॉडल कहता है या सिंगर एंड निकोलसन के हिसाब से सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल की तरह कोई रिजिड स्ट्रक्चर या नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर नहीं है. बट इनका कहना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है या जो बायो मेम्ब्रेन है वो एक फ्लेक्सिबल या हम कह सकते हैं फ्लूइड जैसा सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज्यादा डायनामिक है in its nature. अब डायनामिक का मतलब क्या हुआ? तो डायनामिक का मतलब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमेशा के लिए सेम नहीं रहता, टाइम टू टाइम चेंज होता है या रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस आते हैं. तो डायनामिक ये टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? देखो हम कहते हैं ना कई बार कि ये पर्सन, ये बंदा बड़ा डायनामिक है. डायनामिक किसको कहते हैं? जो परिस्थिति के हिसाब से चेंज होता है या जो परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालता है या ढालना जानता है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? भाई बड़ा डायनामिक बंदा है, समय के हिसाब से बराबर हैंडल कर लेता है, राइट? या फिर टाइम बोलते हैं, टाइम इज वेरी डायनामिक बिकॉज टाइम कीप्स चेंजिंग, समय बदलता रहता है, राइट? उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन भी एक कैसी चीज है? हाईली डायनामिक. नाउ व्हाई यू आर कॉलिंग इट हाईली डायनामिक? लॉजिक रिमेन्स सेम कि हियर आल्सो व्हाट यू सी इज द स्ट्रक्चर दैट यू सी एट given point of time will not remain as it is. After few minutes or say few seconds or after some time, maybe there you will see many changes in its structure, right? And that's the reason why we are using the term dynamic here. Okay, so दो चीजें हमको समझ में आई. पहली कि सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन ये कोई रिजिड स्ट्रक्चर ना होकर
एक सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, और दूसरी बात वो स्टेडी स्ट्रक्चर नहीं है, एक जैसा नहीं होता, बट डायनामिक स्ट्रक्चर है जो चेंज होता रहता है, रैंडमली चेंज नहीं होता, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक, उसके बाद instead of uniform deposition of lipids and proteins, what is said here, instead of uniform deposition of lipids and proteins, biomembranes are mosaic of the two. ये नाम में भी देखो मॉडल के क्या है, मोजाइक, इधर भी फिर से क्या आया, मोजाइक। क्या लिखा है फिर से एक बार पढ़ो, instead of uniform deposition of lipids and proteins, biomembranes are mosaic of the two, that is lipids and proteins are present in mosaic manner. तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि मोजाइक का मतलब क्या होता है, राइट? तो मोजाइक का मतलब होता है इंटरमिंगल्ड। जैसे अब ये काफी पुरानी स्टाइल हो गई है, लेकिन आज भी जिनके पुराने घर होंगे या थोड़े से ओल्ड स्टाइल घर होंगे, या तुमने कई घरों के टाइल्स देखे होंगे, टाइल्स जो फर्श होती है उसमें पत्थर पत्थर होते हैं, बीच में मतलब जैसे एक कॉमन बैकग्राउंड है, अगर ये टाइल है तो एक कॉमन बैकग्राउंड है और इधर ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। इसको कौन से टाइल्स बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं मोजाइक टाइल्स। क्यों बोलते हैं इनको मोजाइक टाइल्स? या फिर तुमने कई प्राणी देखे होंगे, जैसे गाय है तो बैकग्राउंड व्हाइट होता है और ऐसे ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं, रेड कलर के पैचेस होते हैं गाय के बॉडी पे या बैल के बॉडी पे, तो ये मोजाइक पैटर्न है। मोजाइक का सिंपल सा मतलब होता है कॉमन बैकग्राउंड के अगेंस्ट कुछ तो भी बीच बीच में, दैट्स व्हाट सबसे साधारण भाषा में मोजाइक का मतलब, ये कॉमन बैकग्राउंड इस जिसके बीच बीच में कुछ चीजें फंसी हुई, दैट्स व्हाट यू कॉल मोजाइक। ओके, अब यहाँ पे एनालॉजी लगाओ फिर से। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एनालॉजीज। यू मस्ट बी ऑल द टाइम, यू मस्ट बी कंपेयरिंग विद समथिंग टू व्हाट यू स्टडी और व्हाट यू लर्न। ओके, इट विल मेक योर सब्जेक्ट इजी, दैट्स व्हाट यू से एनालॉजी। तो ये जो मोजाइक वाली एनालॉजी है, कॉमन बैकग्राउंड के अगेंस्ट बीच बीच में कुछ चीजें, वो यहाँ सेल मेम्ब्रेन के लिए लगाओ। क्या लिखा है? Instead of uniform deposition of lipids and proteins, biomembranes are mosaic of the two. Okay, where lipids and proteins are present in mosaic manner. जैसे ये सेंटेंस तुमको बहुत कुछ बताएगा। देखो, proteins are like icebergs in the sea of lipids. थोड़ा सा आर्टिस्टिक है, बट अपनी चीज को बहुत अच्छे से कन्वे करता है। जो भी लिखा है वो जो चीज हमको समझनी है उसको बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर रहा है। फिर से एक बार पढ़ो, आर्टिस्टिक लाइन है ये समझ के नहीं, समझने वाली लाइन है ये समझ के पढ़ो। प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स, मतलब पानी में तैरते बर्फ के टुकड़ों की तरह लिपिड्स के समंदर में प्रोटीन्स आइसबर्ग की तरह प्रेजेंट है। ठीक है ना, मतलब कॉमन बैकग्राउंड किसका है? लिपिड्स का, और बीच बीच में फंसी हुई चीजें कौन है? प्रोटीन्स। तो ये हुआ मोजाइक एनालॉजी। प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स, मींस इन द कॉमन बैकग्राउंड ऑफ लिपिड्स देयर अपीयर्स प्रोटीन्स हियर एंड देयर। मतलब ऐसा नहीं कि आधे हिस्से में प्रोटीन्स है और आधे हिस्से में लिपिड है, आधा तेरा आधा मेरा, ऐसा काम बायोमेम्ब्रेन में नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू सी इज any given biomembrane is a mosaic combination of lipids and proteins, where lipids are in the background and proteins are embedded here and there like icebergs. Okay, that's the analogy, and that's what we call mosaic pattern. Common background is of lipids and in between there are proteins. Okay, so when we talk about fluid mosaic model, this thing is very important to understand, that according to fluid mosaic model, the cell membrane is not rigid but it is semi-fluid, it is not steady but it is dynamic, and it is a mosaic, not a deposition of
uniform type, and mosaic is of which type? Where background is made up of lipids and in between there are proteins. Therefore this saying that proteins are like icebergs in the sea of lipids. Is it okay? तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं हम लिपिड्स और प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करके या डिस्क्राइब करके, ठीक है ना? मतलब लिपिड्स कौन से टाइप के और कैसे हैं और प्रोटीन्स कौन से टाइप के और कैसे हैं, और ये समझाने के लिए बाजू के पार्ट में इसी बोर्ड पे आपको एक डायग्राम दिखेगा. वो डायग्राम किसका है ये भी दिखेगा. दिस डायग्राम इज in reference to fluid mosaic model proposed for biomembrane structure given by Singer and Nicholson, right? तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमको कुछ चीजें और यहाँ समझनी होंगी. तब तक आप इसको फोकस करते रहिए, देखते रहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. ओके हमारे पास थोड़ी जगह की कमी होने के कारण या इस बोर्ड पे सब कुछ एक साथ नहीं आ सकता. दैट्स द रीजन वी कीप रिमूविंग एंड वी कीप राइटिंग द थिंग्स. ओके सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दैट. ओके जब तक हम ये काम पूरा कर रहे हैं यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक एट दैट डायग्राम प्रॉपर्ली. देखो आप वहाँ पे क्या क्या आपको दिखता है, क्योंकि हम उसको एक्सप्लेन शॉर्टली करेंगे तो तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. और जो भी आपको समझता है वो आप एक अलग शीट पे या अलग बुक में नोट भी कर सकते हो, उससे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. जितना अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के लिए हमको चीज़ें अलग अलग कर सकते हैं वो करनी चाहिए. इट्स योर डेवलपमेंट पीरियड, राइट? योर माइंड इज डेवलपिंग इन दिस फेज ऑफ योर लाइफ. यू कैन acquire as many things as you want in your brain. It's developing, it is ready to take the new things, so try to acquire maximum new things. Okay, try to learn maximum new ways of study. That's what you should do. Okay, एक चीज मत करते रहो क्योंकि फिर उससे दिमाग खराब होता है या दिमाग की सोचने की एबिलिटी, काम करने की इफिशिएंसी कम होती है. ओके ये कुछ एडिशनल है जो मैं बोलता रहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप यू पीपल मोटिवेटेड. इसको आप कैसे लेते हो ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन पॉजिटिवली लोग जो बोलता हूँ उस पर सोचो तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती है. बिकॉज आई एम नॉट सेइंग इट आउट ऑफ एनी रैंडम फैक्ट बट आई एम सेइंग इट आउट ऑफ एक्सपीरियंस. ओके जहाँ तक हमारे टॉपिक का फर्दर डिस्कशन है वो अभी हमको स्टार्ट करना है. ओके अभी तक हमने कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन एक क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, एक डायनामिक स्ट्रक्चर है और उसमें लिपिड्स बैकग्राउंड में है लाइक अ सी एंड आइसबर्ग्स के तौर पे प्रोटीन्स है. मतलब इट्स अ मोजाइक ऑफ प्रोटीन्स इन द सी ऑफ लिपिड्स, राइट? इसके आगे हम बढ़ते हैं. जहां तक बात है लिपिड्स की, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से लिपिड्स इन अ biomembrane are mainly, see this fact is a very important fact, phospholipids. अब देखो बच्चों बात ऐसी है कि लिपिड्स ना तुमने पढ़े ना हमने पढ़ा है. लिपिड्स को बायोमोलेक्यूल के तौर पे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन वो इस चैप्टर में तो पॉसिबल नहीं. उसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर है जिधर हमको बायोमोलेक्यूल्स के अंदर लिपिड्स और उसके डिफरेंट प्रकार पढ़ने हैं. ये आप पहले से जानते हो, मैं पहले से बताता आ रहा हूँ. फिलहाल आप इतना समझो कि लिपिड्स के डिफरेंट प्रकारों में से या डिफरेंट टाइप्स में से एक प्रकार है ये फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड एक ऐसा लिपिड है जिसमें दो हिस्से होते हैं, और यू कैन से
It has two parts. स्ट्रक्चरली फॉस्फोलिपिड के दो हिस्से होते हैं. पहले हिस्से को कहते हैं पोलर हेड. पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में समझोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट सिर्फ मैं तुमको आसान भाषा में फिलहाल के लिए समझाता हूँ, ध्यान दो. एक पार्ट है पोलर हेड और दूसरा पार्ट है नॉन पोलर टेल्स. There is one head and there are two tails. Clear? That's why head and tails. वो तुम्हारा सिक्के वाला head and tail नहीं है, ठीक है ना? कॉइन ऊपर उछाला head और tail. That's not head and tail. Here it is. You can see. ये एक सिंगल फॉस्फोलिपिड मोलेक्यूल का स्ट्रक्चर आपके लिए यहाँ निकाल के रखा है. एक सिंगल फॉस्फोलिपिड कैसा दिखता है यह हमको स्ट्रक्चरली हम दिखाते हैं. तो ये ऊपर का जो हिस्सा है सर्कुलर, इसके लिए क्या लिखा है? यू कैन सी इट इज पोलर हेड. एंड ये जो नीचे की दो लाइंस है इनको कहते हैं नॉन पोलर टेल्स. ओके, तो ईच सिंगल फॉस्फोलिपिड, नाउ as far as biomembrane is concerned, there are millions of phospholipids that are present in a single biomembrane. We are talking about each one of them. Okay, each one of them or each one of the phospholipid that is present as a part of biomembrane has two parts in itself. One is polar head and other is non-polar tails. Clear? Now, polar head is hydrophilic and non-polar tails are hydrophobic. Hydro मतलब water, phobic मतलब डर. तो एनालॉजी को समझो. ये जो टेल्स है या ये वाला जो हिस्सा है फॉस्फोलिपिड का, वो वाटर से दूर भागता है या वाटर जहां पे है वहां से दूर रहता है. जबकि ये जो पोलर हेड है या पोलर हिस्सा है वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक. फिलिक मींस अट्रैक्शन, मतलब वाटर की तरफ रहता है. एनालॉजी समझ में आई? फिर से एक बार. पोलर हेड इज हाइड्रोफिलिक, मींस दिस पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज हाइड्रोफिलिक, सो इट रिमेन्स टुवर्ड्स वाटर और वाटर कंटेनिंग एरिया, while this part of a same phospholipid is hydrophobic, non-polar, so it moves away or remains away from the area having water. That's the logic. Is it okay? Now read the thing. According to this model, lipids in a biomembrane are mainly phospholipids. Okay, and each of the phospholipid has two parts. A head which is hydrophilic or polar and tails which are hydrophobic or non-polar. Okay, now these phospholipids, we are talking about this model, don't miss this. These phospholipids are present as bilayer. Read this, it is very important. Each single fact that we are writing are very basic and very essential things about what you say, the model that we are discussing, that is fluid mosaic model. That's why just understand them one by one. What I said in first point कि ये मॉडल कहता है कि बायोमेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट लिपिड्स जो है वो कौन से टाइप के हैं? फॉस्फोलिपिड्स, या फिर ऐसे लिपिड्स जिनके खुद में दो हिस्से हैं. एक हिस्सा पोलर या हाइड्रोफिलिक है और दूसरा हिस्सा नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक है. बराबर, उसको दिखाया गया है इधर, ये हेड और ये टेल्स. हाइड्रोफोबिक हिस्सा वाटर से दूर रहेगा या वाटर कंटेनिंग एरिया से दूर रहेगा
और हाइड्रोफिलिक हिस्सा वाटर वाले एरिया के तरफ ओरिएंटेड रहेगा हमेशा। दूसरी बात या दूसरा फैक्ट इस मॉडल से हमको पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट एज बाइलेयर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाइलेयर? बाय मतलब होता है टू, इधर बाय का मतलब क्या होता है? टू। ओके, एंड लेयर इज लेयर। तो कहने की बात यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ये दो लेयर्स में प्रेजेंट है और एज अ बाइलेयर प्रेजेंट है। डायग्राम से समझ में आएगा। देखो कितनी लेयर्स है यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की, तो ये देखो सिंगुलर फॉर्म, देखो ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, तो इसको क्या बोलेंगे? सी। ये नाम यहाँ पे पढ़ो डायग्राम में, क्या नेमिंग या क्या लेबल दिया गया है? फॉस्फोलिपिड bilayer. Why bilayer? Because there are two layers of phospholipids attached to each other at a time. Therefore, what we are saying here is these phospholipids are present as a bilayer where polar heads, see this point is very important, polar, I am writing this in different colors so that you can give emphasis on it, where polar heads are oriented outwards, okay, or periphery, and non-polar tails are oriented towards each other or inwards. Read this sentence or fact written in blue color again. बाइलेयर में क्या दिखता है? तो पोलर हेड्स जो है वो किस तरफ ओरिएंटेड है? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, और जो नॉन पोलर टेल्स है वो किस तरफ ओरिएंटेड है? तो इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ। आप इस डायग्राम पे फोकस करो, इधर समझ में आएगा। देखो ये कैसा हिस्सा है? नॉन पोलर। टेल्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स ईच अदर, अंदर की तरफ, एंड हेड्स आर ओरिएंटेड आउटवर्ड्स, राइट? तो हेड्स आउटवर्ड्स क्यों है? इसका भी गणित समझो। देखो अगर ये किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन है ना, इसी सेल मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर है ना, ये जो भी डिटेल्ड स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोजाइक मॉडल के हिसाब से, ये इसी सेल का सेल मेम्ब्रेन है, राइट? इसका एक छोटा सा सेक्शन है, समझ लो, है ना? दिखाते टाइम ऐसे सेम में सिंगल लाइन दिखाते हैं, इसका डिटेल ये है, बराबर? तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको थोड़ा डिटेल में निकाले तो ये ऐसा है, बराबर? तो सेल के अंदर की तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल के बाहर की तरफ क्या है? फ्लूइड, ब्लड, बराबर? ब्लड या फ्लूइड में भी वाटर है और साइटोप्लाज्म में भी वाटर है। तो वाटर की तरफ सेल मेम्ब्रेन का कौन सा हिस्सा है? पोलर, पोलर, पोलर हेड, ये वाला पोलर हेड फ्लूइड, सेल के बाहर के फ्लूइड की तरफ है, ये वाला पोलर हेड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट वाटर की तरफ है। मतलब इस तरह की अरेंजमेंट से होता क्या है? तो वाटर वाले एरिया से ये जो टेल्स है ये बची रहती है, बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, सो दे मस्ट बी अवे फ्रॉम द एरिया कंटेनिंग वाटर, राइट? सो ये जो अरेंजमेंट है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, जिसमें हेड्स आर ओरिएंटेड आउटवर्ड्स एंड टेल्स आर ओरिएंटेड इनवर्ड्स, ये इंश्योर करती है कि जो टेल्स है, जो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर वाले रीजन से दूर रहे, अंदर की तरफ रहे, और जो हेड्स है पोलर, जो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर कंटेनिंग एरियाज की तरफ रहे, क्योंकि वो रह सकते हैं। दैट्स द लॉजिक व्हाई a lipid bilayer
has such an arrangement where polar heads of the phospholipids are oriented outwards and non-polar tails of the phospholipids are oriented inwards. Is it okay? ये arrangement समझ में आनी चाहिए हमको, इसलिए फिर से एक बार पढ़ो कि according to this model the phospholipids present in a biomembrane are present as bilayer at a time two layers where polar heads are oriented outwards or periphery मतलब बाहर and non-polar tails are oriented towards each other that is inwards. Is it okay? That's the arrangement of lipids and type of lipid, mainly phospholipid, each of it having a polar head and non-polar tails. Clear? ये हुआ लिपिड्स के बारे में, या लिपिड्स के बारे में बोलने से बेटर हम ये कहें कि लिपिड्स की अरेंजमेंट, ठीक है ना, बायोमेम्ब्रेन्स में किस तरह से होती है, ये अभी तक हमने एक्सप्लेन किया। फिर अब लिपिड की अरेंजमेंट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखो ये ब्लैक पोर्शन है, ये क्या है, ये ब्लैक वाली चीज पूरी तरह से है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसमें आपको वो रूल फॉलो होता हुआ मिलेगा, पोलर हेड आउटवर्ड्स, टेल्स इनवर्ड और टुवर्ड्स ईच अदर। फिर बचा क्या, तो लिपिड्स के बाद मेन कंपोनेंट जो बायोमेम्ब्रेन का है वो है प्रोटीन्स, बराबर। लिपिड्स के लिए हमने ये चीजें डिस्क्राइब की कि भाई लिपिड फॉस्फोलिपिड टाइप का होता है, हर फॉस्फोलिपिड में पोलर हेड नॉन पोलर टेल्स होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में होते हैं और हर बाइलेयर में पोलर हेड्स आउटवर्ड है और नॉन पोलर टेल इनवर्ड्स या टुवर्ड्स ईच अदर है। ये डिस्कशन जरूरी जो भी था वो हमने किया, किसके लिए, लिपिड्स प्रेजेंट इन बायोमेम्ब्रेन के लिए। अब नंबर आएगा प्रोटीन्स का, बट बिफोर वी मूव ऑन टू प्रोटीन्स जस्ट हैव अ लुक फॉर व्हाट वी सेड अबाउट लिपिड्स फॉर अ व्हाइल। Okay, now if you see that diagram you can point out the different names that are given for proteins। देखो क्या क्या दिखता है आपको, दिखेगा वहां पे एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, उसके बाद आपको दिखेगा टनल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, फिर आपको दिखेगा चैनल प्रोटीन, राइट। तो ये सारे क्या है, प्रोटीन के टाइप्स। अब यहाँ पे थोड़ा पॉइंट वाइज जाते हैं तो बेटर होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये सब चीजें इस मॉडल के रेफरेंस में पढ़ी जा रही है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन्स आर embedded, फंसे हुए in lipid bilayer like icebergs in a sea। Means what we said initially, that proteins are like icebergs in the sea of lipids। That's what we are saying it again। According to this model, proteins are embedded in lipid bilayer like icebergs in a sea। Okay, now mainly three types of proteins are found in biomembranes on the basis of location। ओके, बायोमेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की लोकेशन कहाँ है, इस बेसिस पे प्रोटीन्स, बायोमेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो प्रोटीन्स है वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। किस बेसिस पे, इसको नहीं भूलना, ऑन द बेसिस ऑफ
लोकेशन। कौन से तीन जो डायग्राम में भी दिखेंगे? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन्स प्रेजेंट इन अ बायोमेम्ब्रेन का, ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये किस भरोसे किया गया क्लासिफिकेशन है या कौन से आधार पे किया हुआ क्लासिफिकेशन है? लोकेशन। मतलब सेल मेम्ब्रेन में या बायोमेम्ब्रेन में प्रोटीन्स कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, किस लोकेशन के अंदर पाए जाते हैं, इस आधार पे या इसको एज अ बेसिस मान के अगर हम क्लासिफाई करें प्रोटीन्स को तो उसके तीन प्रकार हम कह सकते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। डायग्राम देख के बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो इस मेम्ब्रेन को या सॉरी इस प्रोटीन को या इस वाले प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? लोकेशन वाइज। ये नाम लोकेशन के हिसाब से नहीं है, काम के हिसाब से, फंक्शन। लोकेशन के हिसाब से, पोजीशनिंग के हिसाब से ये वाला ये वाला, ये दोनों में क्या सिमिलरिटी कॉमन है? देखो इस छोर से लेकर इस छोर तक, बाहर से लेकर अंदर तक ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। देखो ये वाला भी और ये वाला भी, तो ऐसे बाहर से अंदर तक कंटिन्यूअस मैनर में या थ्रू आउट द मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इन तरह के प्रोटीन्स को हम कहते हैं transmembrane proteins. Now what will be the description for transmembrane proteins? The proteins which run throughout the biomembrane. The proteins which run throughout the biomembrane are called transmembrane प्रोटीन्स। ओके, उसके बाद एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स किसको कहेंगे? तो आप देखो यहाँ पे इस प्रोटीन को देखो, ठीक है, इसको नाम नहीं दिया हमने लेकिन इसको दिया। ये और ये, इसमें फर्क कुछ नहीं है, ये अंदर के सरफेस पे प्रेजेंट है और ये बाहर के सरफेस पे, लेकिन है ये सरफेस पे प्रेजेंट। इस बात को क्लियरली समझो, सरफेस पे प्रेजेंट है, अंदर के या बाहर के, लेकिन है तो सरफेस पे। तो बायोमेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट प्रोटीन्स को कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, लोकेशन के हिसाब से। दैट्स व्हाई इसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा? दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बायोमेम्ब्रेन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक के लिए क्या डिस्क्रिप्शन आएगा? द प्रोटीन्स that are present on the surface of biomembrane are called extrinsic protein. Doesn't matter it's an external surface or it's an internal surface. Surface is a surface and surface पे attached proteins को कहते हैं peripheral या extrinsic proteins. ठीक, जबकि throughout the membrane run होने वाले प्रोटीन को कहते हैं transmembrane protein और tunnel protein. ट्रांसमेम्ब्रेन को हम और क्या कह सकते हैं? टनल प्रोटीन। ठीक, बिकॉज इट रन्स थ्रू आउट द मेम्ब्रेन लाइक अ टनल रन्स थ्रू सम हिल। ओके, रहा सवाल इंट्रिंसिक प्रोटीन्स किसे कहेंगे? तो आप इसको देखो, ये क्या है? ना सरफेस पे है ना थ्रू आउट रन हो रहा। ये कैसा है? बाहर से अंदर तक कंटिन्यू है, ये बोलो या इसको बोलो, ये पूरी तरह से बाहर है सरफेस पे। इसका क्या? ये अंदर है लेकिन
पूरी मेम्ब्रेन में रन नहीं होगा, इट्स एम्बेडेड, ये फंसा हुआ है अंदर मेम्ब्रेन के। तो ऐसे जो प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर पूरी तरह से एम्बेडेड है, रन नहीं हो रहे थ्रू आउट या सरफेस पे भी नहीं है, बट पूरी तरह से मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं, इनको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ओके, और इंटीग्रल प्रोटीन्स एज यू कैन सी। तो इसकी कोई क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, these are those proteins which are completely embedded in membrane। तीनों को देखो फिर से एक बार, the proteins that run throughout the length or width of a biomembrane are transmembrane proteins. Those which are completely embedded into the membrane are called intrinsic or integral proteins, and those which are present on the outer or inner surface but present on the surface are said to be extrinsic or peripheral proteins। ठीक है, एक फैक्ट हमने बोली थी कि प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि आइसबर्ग्स, बर्फ के जो टुकड़े होते हैं ना, वो समंदर में तैरते हैं, दे कैन फ्लोट। उसी एनालॉजी को लेकर हम चले तो ये जो प्रोटीन्स है इनकी पोजीशन लिपिड बायलेयर में फिक्स नहीं होती। एज लिपिड बायलेयर और बायोमेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड और सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, these proteins can move laterally in the membrane। biomembrane में ये जो proteins है they can move from one location to other, or lateral movement of the proteins is allowed within a biomembrane। that's why this analogy is much more perfect than it seems। like proteins are like icebergs in the sea of lipids, because proteins are seen in between the lipids and they can also float like icebergs or move like icebergs in the lipid bilayer or biomembrane। और फिर हमने एक बात और बोली थी कि biomembrane structure is not steady but it is dynamic, it keeps changing। इसका रीजन ये था कि किसी biomembrane में present proteins या लिपिड्स रिप्लेस किए जा सकते हैं विदाउट किलिंग ऑफ अ सेल। सेल जिंदा रहती है या सेल अपना काम करती रहेगी, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बायोमेम्ब्रेन या किसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन्स को निकाला या नया इंसर्ट किया जा सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है, ये तो अभी हम जानते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रोटीन्स या लिपिड्स है ये एक तरह के हो हमेशा के लिए, ये जरूरी नहीं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से या समय के हिसाब से इन प्रोटीन्स को या इन लिपिड्स को जो इस बायोमेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उनको रिप्लेस एंड रिपेयर किया जा सकता है, या हम ये कहें कि वो चेंज होते रहते हैं। इसलिए बायोमेम्ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टेडी नहीं कहा जाता, डायनामिक कहा जाता है। ये उसका कारण है कि क्यों हमने इससे पहले एक सेंटेंस लिखा था कि बायोमेम्ब्रेन इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर एज फार एज इट्स नेचर इज कंसर्न्ड। इट इज डायनामिक बिकॉज इट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स दैट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कीप्स changing according to requirement, and that too without killing of a cell or structure in which these biomembranes are present. Is it okay? Now we will discuss some more facts about proteins of the biomembrane, but before that just have a look what we have said till for the proteins. First point, कि proteins are of three types on the basis of location. Okay, those three types are transmembrane, which runs throughout the membrane; extrinsic, which are present completely on the surface, either outer or inner; and intrinsic or integral, that are completely embedded into the membrane or biomembrane. Now, biomembrane या किसी भी सेल मेम्ब्रेन जो कि एक बायोमेम्ब्रेन का ही प्रकार है, उसमें प्रेजेंट प्रोटीन्स करते क्या है?
तो एक बात फिर से याद करो जो हमने इससे पहले लिखी या बोली या डिस्कस की। हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, कहा था। और जब हमने इसको पढ़ा था, इस पॉइंट को, तब भी हमने बोला था कि वी विल डिस्कस इन फर्दर डिस्कशन कि व्हाई अ गिवन बायोमेम्ब्रेन और व्हाई अ सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, हु मेक्स इट सिलेक्टिवली परमिएबल। सो यहां उसका जवाब आएगा प्रोटीन्स मोस्टली वर्क एज ट्रांसपोर्टर्स, खास करके सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है, मतलब ये ऐसे वाले, ठीक है ना, वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स मोस्टली किस तौर पे काम करते हैं? ट्रांसपोर्टर्स, मतलब चीजों को सेल के अंदर या सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव कराने के लिए these proteins called transmembrane proteins mainly work। अब आप देखो इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम लिखा है चैनल प्रोटीन, जबकि इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए ब्रैकेट में लिखा है कैरियर और परमिएज। तो आप देखो कि अलग अलग चीजें ट्रांसपोर्ट करानी होती है सेल के अंदर बाहर, जैसे कि डिफरेंट टाइप के आयंस है, मिनरल आयंस, फिर वाटर है, फूड है या न्यूट्रिएंट है किसी तरह का, राइट, या दुनिया भर के डिफरेंट सोल्यूट्स है हम कहें। अब इनमें से हर सोल्यूट का या हर आयन का नेचर सेम नहीं होता, मतलब कुल मिला के हम इनको दो तरह में बोल सकते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, मतलब चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड। तो जो सेल मेम्ब्रेन का बीच का हिस्सा है वो कैसा है? नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक। ओके, ये हम पहले भी बोल चुके हैं। तो इस सेल मेम्ब्रेन की ये जो लिपिड बायलेयर है, इससे हर चीज पास नहीं हो सकती, मतलब हाइड्रोफोबिक चीजें या लिपिड सोल्यूबल चीजें तो इस हिस्से से पास हो जाएंगी, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल चीजें हैं या जो चार्ज्ड चीजें हैं, जैसे कि ये देखो सोडियम आयन हुआ, क्लोराइड आयन हुआ, इवन वाटर हुआ, वाटर तो खुद वाटर है और ये हिस्सा ही हाइड्रोफोबिक है, तो फिर सेल के अंदर बाहर पानी नहीं जाता क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वाटर ऑलवेज मूव, इट्स अ डोमिनेंट थिंग दैट मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बट एक तरफ हम कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन का बीच का हिस्सा पूरी तरह से हाइड्रोफोबिक है, उसके थ्रू पानी जा नहीं सकता, तो फिर पानी का एंट्री या एग्जिट सेल के अंदर या बाहर कैसे होता है? या ऐसी चीजें जो चार्ज्ड है, पोलर है, वो इस हिस्से के थ्रू कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती। तो फिर इसका सॉल्यूशन है ये प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स जो है, देखो वो चैनल फॉर्म करते हैं, इट्स अ चैनल जिसके थ्रू पोलर चीजें मूव हो सकती हैं, जो इस लिपिड बायलेयर के थ्रू मूव नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स मोस्टली वर्क एज ट्रांसपोर्टर्स। ठीक, सिर्फ चैनल प्रोटीन ही नहीं बट और भी कैटेगरी के प्रोटीन्स है, जैसे कि कैरियर प्रोटीन्स या परमिएज टाइप के प्रोटीन्स, जो अलग अलग सोल्यूट्स को बायोमेम्ब्रेन के थ्रू मूव कराते हैं, आइदर आउटर टू इनर साइड और इनर टू आउटर साइड। उसे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को हम सेपरेट टॉपिक के तौर पे पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैरियर किसे कहते हैं, परमिएज प्रोटीन किसे कहते हैं, चैनल प्रोटीन किसे कहते हैं। ये सब नाम, कैरियर हो गया, परमिएज हो गया, चैनल प्रोटीन हो गया, ये सारे नाम उन प्रोटीन्स के फंक्शन के बेसिस पे दिए गए नाम हैं, जबकि ये नाम मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, ये लोकेशन के आधार पे दिए गए नाम है, फर्क है। ठीक, तो हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जब पढ़ेंगे तब क्लियर कट मैनर में पढ़ लेंगे कि कैरियर किसको बोलना, परमिएज किसको बोलना,
या फिर चैनल प्रोटीन किसे कहना। फिलहाल यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं उसको समझो कि ज्यादातर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन या बायोमेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो किस तौर पे काम करते हैं, एज अ ट्रांसपोर्टर, चीजों को मूव कराने के लिए। तो अब इस बात से हमको समझ में आएगा कि क्यों हम बायोमेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, क्योंकि जिस सोल्यूट को मूव कराने के लिए प्रोटीन प्रेजेंट हो सेल मेम्ब्रेन या बायोमेम्ब्रेन में, सिर्फ वही सोल्यूट मूव कर पाएगा। अगर कोई सोल्यूट है XYZ जिसको मूव कराने वाला ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन या किसी बायोमेम्ब्रेन में अब्सेंट है, तो वो सोल्यूट उस बायोमेम्ब्रेन के थ्रू मूव नहीं कर पाएगा। दैट्स वेयर कम्स सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, और इसी नेचर को हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो प्राइमरीली सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन्स की वजह से पॉसिबल है। ठीक, इसके अलावा मतलब ट्रांसपोर्टर के तौर पे एक्ट करने के अलावा प्रोटीन्स इन बायोमेम्ब्रेन्स एक्ट एज एंजाइम्स। नाम सुना होगा शायद एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं, मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो किसी केमिकल रिएक्शन को या बायोकेमिकल रिएक्शन को पूरा करवाते हैं विदाउट टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। किसी भी कैटालिस्ट की यही प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे एंजाइम्स को भी हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल्स में, बट बायोमोलेक्यूल्स में अभी नहीं। तो ये जो प्रोटीन्स है बायोमेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट, कई सारे प्रोटीन्स ऐसे भी है जो ट्रांसपोर्टर की जगह किस तौर पे काम करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स को हम एंजाइमेटिक प्रोटीन्स कहते हैं या एंजाइम्स कहते हैं। हम यहाँ रोल पढ़ रहे हैं ना, फंक्शन पढ़ रहे हैं। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन बायोमेम्ब्रेन्स डू व्हाट? सो दे एक्ट एज transporters, they work as enzymes, and not just that, in the form of glycoproteins। glycoproteins मतलब कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, ये देखो ये प्रोटीन है, ये नीला वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो ये हुआ ग्लाइकोप्रोटीन। लिखा भी है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं हम कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स, दे वर्क एज receptors for, or say, cell surface receptors for recognizing or recognition of different signals like hormones। किसी ग्लैंड द्वारा तैयार किए गए हार्मोन्स, शायद आपने टर्म सुनी होगी, नहीं सुनी तो हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। हर चीज है उनको सिलेबस में, बस बात इतनी है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। हर चीज एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन बेसिक फैक्ट अगर जाननी है तो समझ लो कि हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और ये हार्मोन्स अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स नाम के ऑर्गन द्वारा बनाए जाते हैं। और ये हार्मोन जब किसी सेल पे एक्ट करते हैं तो उस सेल पे उन्हें अटैच होना होता है। तो अटैचमेंट के लिए चाहिए रिसेप्टर जो रिसीव करे। जैसे टीवी में प्रोग्राम देखने के लिए एंटीना चाहिए, जो एंटीना एयर में प्रेजेंट सिग्नल्स को रिसीव करता है, बाद में टीवी में प्रोग्राम दिखता है। तो उसी तरह से किसी हार्मोन द्वारा सेल पे काम करने के लिए
हार्मोन को सेल के ऊपर अटैच होना जरूरी है, तो अटैचमेंट के लिए चाहिए एंटीना मतलब रिसेप्टर। तो सेल के ऊपर रिसेप्टर के तौर पे कौन काम करता है? प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। मतलब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये कोई रिसेप्टर है और ये कोई सेल मेम्ब्रेन, तो ये हार्मोन इस पे अटैच होगा और इस पे अटैच होने के बाद ये हार्मोन इस सेल पे किसी तरह का काम करवाएगा। दैट्स द लॉजिक। ओके, तो फंक्शन के तौर पे ये भी एक फंक्शन है कि मेनी प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स वर्क एज अ रिसेप्टर्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सिग्नल्स लाइक हार्मोन्स। तो कितने फंक्शन हमने देखे अभी? 3 प्रोटीन्स की जहां तक बात है। They work as transporters, they work as enzymes and they also work as receptors. Okay, and ये हुआ function. Structurally हमने क्या बोला कि they are of 3 types: extrinsic, intrinsic और transmembrane, right? और lipids के लिए हमने क्या बोला कि lipids are mainly phospholipids present as bilayer, has polar head and non-polar tails. Heads are oriented outwards, tails are oriented towards each other or inwards. तो ये सारी डिटेल्स हमको बताई गई थी किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा अंडर देयर मॉडल दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और आज हम जितनी भी प्रॉपर्टीज बायोमेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की जानते हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, जैसे कि डायनामिक नेचर, जैसे कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, जैसे कि चेंजिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन अच्छे से हो सकती है बाय द फैक्ट्स मेंशन्ड इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। दैट्स द रीजन this model of biomembrane is the most accepted model for a cell membrane or biomembrane structure. It's a very important topic. You should understand in a proper manner, and whatever discussion we did for this particular model and biomembrane as a whole is more than enough for your requirement. What I said is more than enough for your requirement. If you do these details in complete manner also, you are done with this topic for any possible question that can arise out of cell membrane. Okay, have a look at this structure for a while, and as far as cell membrane as a structure is concerned, we are done here. In next time we meet, we will talk about membrane transport, as we said previously कि we will deal with membrane transport in detail as a separate topic. But for now, as far as structure according to fluid mosaic model is concerned, we are done. Thank you.